Hello student, I am Nitesh Kumar, physics faculty from Resonance, and today I am going to discuss the previous year questions asked by NEET or AIPMT based on topic Newton's law of motion. So first I am starting with the first question. The first question is what? This question is asked in 2012 when NEET was AIPMT. Okay, so the question was, a stone is dropped from height h, it hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from the height 100% more than the previous height, then the momentum when it hits the ground will change by, it means we have to calculate the change in percentage form. So look at this, first I am drawing the diagram for the first case. In first case the stone is dropped from h height from the ground. ऐसा हमने assume किया कि it is dropped from h height from the ground. Okay, so if it is, when it is striking the if it is dropped from h height, on the case when it will strike the ground, at that time I am assuming it is striking the ground with the v velocity, and here the v velocity will be what? I am just writing the magnitude. So here the v will be what? Root under 2gh. We can calculate this v by using the energy conservation, है ना. आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लोगे, यहाँ पे 100% काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड बाय दैट आल्सो यू कैन कैलकुलेट वी. और सेकंड मेथड, आप सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, एंड फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट द v इक्वल टू रूट अंडर 2gh. सो एट दिस पॉइंट इफ आई एम राइटिंग द मोमेंटम इज m into v, that what we can write? M into root under 2gh. Okay, now for the second case, in second case बॉल को थोड़ा और ऊपर से गिराया गया है. So in this case the height of this ball is 100% more, 100h, 100% more is 2h. So on that case the ball will stack with higher velocity. So here the magnitude of velocity will be root under 2g, and you can replace the h by 2h. So what we can write? It's a root under 4gh. Okay, so at this point also we can write it's a v dash. If I am assuming the momentum is also m dash, and here m dash is, sorry, p dash, and momentum is here m into 4gh. Okay, now we have a momentum on both the cases. We can easily calculate the change in momentum. So here the delta p is what? P dash minus p, or what we can write? It's a it's a m into root under 4gh minus m into root under 2gh. Calculate this change. M is common here, root under 2gh is common. So left part is what, student? Root under 2 minus 1. Okay, or root under m root under 2gh is p. So what we can write? It is a p into root under 2 minus 1. This is change in momentum. Now if you want to calculate the percentage change, for calculating percentage change, here the delta p we have a p into root under 2 minus 1. So here the percentage change is delta p divided by p. So what we can write? P root under 2 minus 1 divided by p into 100. Now p cancel out. This is the 1.41 minus 1. So what we can write? 4.41 into 100, and it's a 41%. So the answer is what? The answer is 2, 41%. Now come to the next question. The next question is, so look at this. In this question, 3 blocks of mass m, 2m and 3m are connected by a string as shown in figure. After an upward force F is applied on the block m, the mass moves upward at constant speed. तो क्या हो रहा है? ये पूरा सिस्टम, अगर ये मास m ऊपर की ओर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, इसका मतलब क्या है? ये पूरा सिस्टम ही क्या करेगा? ऊपर की ओर मूव करेगा विद कांस्टेंट स्पीड. ओके, सो व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास
2m। इस पे पूछ रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है। ये पूरा सिस्टम ऊपर की ओर v से मूव कर रहा है, इट मींस दिस ब्लॉक विल आल्सो मूव विद द सेम वेलोसिटी v, ओके। अगर ये v से मूव कर रहा है इट मींस कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट मींस व्हाट, देयर इज नो एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो क्या होगा, फोर्स भी नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, द नेट फोर्स जीरो। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो नीट कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, ज्यादातर तो वन लाइनर क्वेश्चंस ही पूछते, 30% क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी टाइप से होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड। ओके, now come to the next one is the force F acting on a particle of mass m is it indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 second. Okay, so you have to calculate here change in momentum. Okay, we know the relation, the force F equal to dp by dt. Okay, this is the Newton's second law. Rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the particle. Okay, so from here what we can write, the dp equal to f dt. Now if you will integrate it, what you will get from here, change in momentum. और ये क्या होता है, this one is the area under ft curve. It means here we have to calculate the area under ft curve, area under ft curve. Now calculate this. So what we can write here, this one is 1 by 2, height of this triangle is how much, 6 into this is 2 cancel out, minus here this one is 3 into 2 plus 4 into 3. Now this is 6, this one is also 6, so this 2 will cancel out, what is left, 12. And here we have to calculate change in momentum in time interval from 0 to 8 second, so answer is 12 Newton. Understand? Okay, so answer is what, third, 12. Simple question again. Now comes to the next question. In next question what they are asking, a balloon with mass m is descending down with an acceleration a where a is less than g. Okay, how much mass should be removed from it so that it start moving up with an acceleration a? Look at this, student. First try to draw a symbolic diagram for this. So I am assuming this one is the balloon, a mass is m mass is attached with this balloon. Okay, so here in downward direction due to gravitational force weight is mg. Okay, a resistive force in upward direction I am assuming f, because here the acceleration in downward direction which is less than g, इसलिए ऊपर की ओर क्या ले रहे हैं हम लोग, एक resistive force ले रहे हैं which is here f. अब इसके लिए आप लिख लो f net equal to mass into acceleration. So here it is in downward direction, so I am writing m into z minus f equal to m into a. Now here force is unknown, so I am writing this one is in the form of force. So here f equal to mg minus m into a. I am assuming this is our first equation. Now in second case some parts of mass is removed. थोड़ा अच्छा डायग्राम बना लिया जाए. Okay, so in second case student look at this, some mass is removed. I am assuming the m mass is we are removing from the system. So left mass is what? Here the left mass is capital M minus small m. Okay, now this one is in second case it's going in upward direction. So in second case look at this, moving up with an acceleration e. तो अब ये ऊपर की ओर एक्सेलरेशन ए से मूव करने लग गया. अगेन हेयर स्टूडेंट द फोर्स इज एफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इनटू जी. ठीक है ना, इसके लिए इक्वेशंस लिख लेते हैं हम लोग. एफ नेट हेयर द एफ माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू जी इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इनटू ए.
From here write down the equation in the form of force, because we are going to equate the both the equations. Okay, so here F equal to what? Capital M minus small m, A minus plus it's into C. Okay, now student, this one is the, I am assuming this one is the second equation. अब फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करो तो क्या मिल जाएगा? एम जी माइनस एम ए इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम into A plus G. Okay. Now we have to calculate the small m. So we are writing this equation like this: m g minus. Okay, I am writing in next page. So we have a equation m g minus m A is equal to m minus small m into A plus G. This was the equation, I think. Yes, mg minus, yes, this one is the equation. So now look at this. From here we have to calculate the small m. So what we can write? This is in bracket. So what we can write? M into G minus m into A minus m into A plus G is equal to minus of m into A plus G. Okay, what I did here, I taken this m part this side. Okay, so from here what we can write? M into G minus m into A minus of m into A minus of m into G is equal to minus of small m into A plus G. What are the cancel out here? M into this one is cancel out. So we have minus 2 m into A is equal to minus m A plus G. Minus minus cancel out. From here you can get the m equal to 2 capital M into A divided by A plus G. ओके, देखो कौन सा आंसर था? आंसर इज 2 कैपिटल M into A G plus A. Yes, this one is the answer. First is the answer. Okay, now next one, next question. Okay, so student, again the next question, we have a 3 block. Look at this, the 3 block A, B, C of mass. The mass of this block is 4 kg, this block is 2 kg and this block is 1 kg. Okay, respectively are in contact on frictionless surface. The surface is given here is frictionless. Okay, as shown, if a 40 Newton force is applied on 4 kg block, then the contact force between A and B. So here this force is given, student, it's a 40 Newton. Okay, now try to understand. This force is given 40 Newton. It means here the 14 Newton force, not 40, sorry, it's a 14 Newton force. So 40 Newton force is applied on this whole system in horizontally rightward direction. Due to this force, this all block will move in forward direction. ये सारा का सारा block किधर move करेगा? Horizontally rightward direction में. Okay, with how much acceleration it will move? It will start moving. That's how I am writing. Because here the net mass is what? First I am writing F net is equal to m total into acceleration net, or I am just writing A. For this case I am writing A. So from here we can calculate the A equal to m upon F. Total mass is what? 4, 2, 1. It's a sorry. What I written? So here what we can write? So F net upon total mass. So F is what, student? Here it's a 14 and mass is 7. This one is 2 meter per
second square. So acceleration of the system now you got. Now try to understand why this B block is moving. Just because the normal force applied by this A block on B block, if I am assuming this is the N, okay, because of this N, this block is moving, and now this block is applying normal force on the second C block, third C block, that's why the C block is moving. So this whole system, this 2 block is moving just because of the responsible force is here N. आपको क्या निकालना है? N. तो हमें N निकालना है. By the way, this 2 blocks is moving with how much acceleration? 2 मीटर पर सेकंड. ये एक्सेलरेशन किसके लिए है? तीनों ब्लॉक के लिए है, ठीक है ना. तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? मास, नेट मास ड्यू टू दिस फोर्स इज मूविंग इज 3, 2 + 1, 3, and here the acceleration is 2. So now answer is 6 Newton. 6 Newton is the answer. So 6 Newton is first. This one is the answer. Understand? So it's again a easy question. Come to the next. Next question is here, 2 block A and B of mass 3 meter and 3 m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. It means what? क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, एक स्प्रिंग के साथ ये पूरा सिस्टम जो है सो टाइड है, इसका मास 2m दे रखा है और ये मास जो है आपको m गिवन है, ठीक है. अब अपने को अगर अपन इस स्ट्रिंग को कट करते हैं, लुक एट दिस, जस्ट आफ्टर, इट इज रिटन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, ओके. जब आप इसको जस्ट कट करते हैं तो सोचो पहली बात ये क्या होगा, फ्री फॉल करेगा, है ना. m तो फ्री फॉल करेगा, तो जब m फ्री फॉल करेगा इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g. तो सेकेंड में एक्सेलरेशन आपको देखना है, इसके पास है और ये दोनों आंसर तो पहले ही नहीं होगा, ठीक है ना. अच्छा अब देखो A का, A पे क्या हो रहा था, ये फुल सिस्टम जो है, ये सिस्टम जब आपने कट नहीं किया था तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो रहा था, टाइट था, मतलब नीचे की ओर जो है सो 4 mg, ये 3 mg नीचे की ओर टोटल और प्लस m. यहां पे अगर मैं बोलूं कि इस पार्ट, ये छोटा सा जो स्ट्रिंग है जो स्प्रिंग में कनेक्ट हो रहा है, वहां पर अगर मैं टेंशन की बात करूं, जब हमने कट नहीं किया था उस कंडीशन में कितना था, 4m × g. इसका मतलब स्प्रिंग इस पर फोर्स कितना लगा रहा था, 4m × g, जिसके चलते ये सिस्टम कैसा था, बैलेंस था, ठीक है ना. इनिशियली तो ये बैलेंस्ड ही था ना, ओके. अब क्या हुआ कि आपने जैसे ही कट किया, अब स्प्रिंग को टाइम चाहिए, ये इंस्टेंट एट द टाइम फोर्स लगा करके बैलेंस नहीं कि लगाएगा, ठीक है ना. अभी लेकिन क्या है कि हमारे पास पूछ रहा है एट द टाइम, इमीडिएटली. तो इमीडिएटली कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ. ए का नीचे की ओर कितना फोर्स है, ड्यू टू ग्रेविटी 3mg, ऊपर की ओर ये टेंशन अभी तुरंत ही खत्म नहीं होगा, तो ये जो फोर्स था, एक मिनट, ये जो फोर्स है वो है आपका 4m × g, ठीक है. आपको एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है ना. तो आप क्या लिखोगे, देखो इसमें जो है एक्सेलरेशन आपको निकालने के लिए 4m × g - 3m × g इक्वल टू मास कितना है सिस्टम का, 3m × a. यहां से आप a कैलकुलेट कर लो, a एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, m × g डिवाइडेड बाय 3m, m कैंसिल आउट, इट्स a g/3. So answer is what, second. It means here the 3m mass will move in upward direction with the g/3 acceleration, and second block will do free fall, it will fall in downward direction with the g acceleration. तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन ही था, है ना. नेक्स्ट ओके, ये सूडो फोर्स पर बेस्ड है, अपन सूडो फोर्स से नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम दोनों से कर सकते हैं. टाइम बचाने के लिए अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ABC, ठीक है, ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल थीटा, ये एंगल दे रखा है बच्चे थीटा, ठीक है. एज शोन इन फिगर द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स राइट, ओके. द रिलेशन बिटवीन A and theta for the block to remain stationary on the wedge. तो आपको क्या करना है, एक रिलेशन बताना है जिसके चलते ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये स्लिप
ना करे, ये नीचे की ओर मूव ना करे, ठीक है ना बच्चे। तो अब देखो इसमें एक तो फोर्स है जो फिक्स है विच इज m इंटू जी। चलो सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स को अपन डिफरेंट कलर से बनाते हैं, ठीक है। सो लुक एट दिस सूडो फोर्स, अगर हम लोग इसको इस मूविंग प्लेन, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इसी वेज पर है, इसे इंक्लाइन प्लेन पे है, इट मींस द ऑब्जर्वर इज इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो यहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। आप इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, आपको दोनों मेथड पता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग सूडो फोर्स लगाते हैं, सूडो फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू ए। दिस एंगल इज व्हाट, थीटा, ओके। नाउ mg का एक कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइन प्लेन कितना आएगा, mg sin theta and here in this direction it's a mg cos theta। वैसे अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है, इसका भी दो कंपोनेंट आएगा बट along inclined plane क्या आ जाएगा, ma cos theta। अब देखो ये ब्लॉक किधर मूव कर सकता है, नीचे की ओर स्लाइड कर सकता था, ये स्लाइड नहीं करे, इसका मतलब क्या है, ma cos theta जो है, ma cos theta है और mg sin theta है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर जाए, है ना। इट मीन्स आपको कंडीशन बताना है कि ये स्टेशनरी में रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग वेज और मूविंग इंक्लाइन प्लेन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। इट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। m cancel out, you have to find the relation between a and theta, so here a equal to g sin theta divided by cos theta। आप इसको क्या लिख सकते हो, सिंप्लीफाइड g tan थीटा, ओके। कौन सा रिलेशन आ रहा है, थर्ड, ओहो सेकेंड, a इक्वल टू g tan थीटा। इजी है स्टूडेंट अगेन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with the horizontal, it travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreases to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance, then x1 and x2। अब देखो क्या दे रखा है कि इस तरह से हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है और हमने एज्यूम किया यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है ना, u से ऐसा हमने एज्यूम किया कि एक m मास का, एक मिनट, एक m मास का ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ऊपर की ओर u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने एज्यूम किया इन दिस केस व्हेन द थीटा इज 60 डिग्री, जब थीटा आपका 60 डिग्री है तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहां से यहां x1, ठीक है। आपको एक चीज पता है कि इसमें इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा होगा, mg sin थीटा, इसके चलते अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आराम से रिलेशन लिख सकते हो बिटवीन x1 एंड u एंड g sin थीटा। व्हाट वी कैन राइट, at this point अगर ये यहां से यहीं तक पहुंचा, at means here the v is what, 0, so what we can write, the v square, it means 0 equal to u square, and look at this, u is opposite of the g sin theta, it means what we will write, minus g sin theta, sorry, 2g sin theta into x1, okay। So from here this one is our first equation, or what we can write here, because we have to find the relation, it can x2 distance then x1 by x2, so from here I am writing the value of x1, so what we can write, the x1 is equal to u square upon 2g sin 60, here theta is given 60, so this is the first case. In second case student, the inclination angle is decreased till 30 degree, okay, so here in second case the inclination angle is 30 degree, okay। अब यहां से सेम ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दिस इज ट्रेवलिंग द x2 डिस्टेंस, अच्छी बात है। अब यहां से भी हम लोग सेम रिलेशन लिख सकते हैं, द रिलेशन ऑफ x2 सेम एज इट इज, व्हाट वी कैन राइट, u स्क्वायर अपॉन 2g sin 30, ठीक है ना। अपने को क्या निकालना है, अपने को फाइंड करना है x1 बाई x2, डिवाइड इट, x1 बाई x2 क्या मिल जाएगा आपका, u स्क्वायर अपॉन
2g sin 60 का वैल्यू रूट अंडर 3/2. Okay, now here again we have to write u square upon 2g sin 30. It means 1/2. So multiply 1 into 2. क्या क्या कैंसिल आउट हो गया बच्चे? u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2g कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये 2 कट गया, अपने पास बच गया 1/√3. आंसर कौन सा है? 4th. इजी है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ऐसे, ठीक है. अभी क्या है कि मैं आपको सॉल्यूशन बताते समय डिटेल में हर एक फॉर्मूला सब कुछ लिख के बता रहा हूँ. इन एग्जाम आपको ये फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप बिना फॉर्मूला लिखे हुए फटाफट कर सकते हो, ठीक है ना. मैं रिवीजन टाइम में फॉर्मूला इसलिए लिख दे रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ और भी टॉपिक जो है सो रिवाइज हो जाए. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9th. अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v is acting by the 3 force shown by the vectors triangles p q r, then the velocity on the particle will. अरे ये तो सब आपस में क्या हो रहा है? देखो, अगर आप इस तरह से अगर ड्रॉ करते हो, मान लो हमने ऐसा एक ब्लॉक लिया, ऊपर की ओर एक फोर्स है अपने पास, इसका नाम मान लो पी आर. आर पी एक फोर्स था इधर, आर क्यू आर इधर की ओर है एक, मान लो ये फोर्स जो है आपका इधर की ओर, मैं इसका नाम दे देता हूँ, इस फोर्स का नाम देता हूँ F1, दिस इज द F2, दिस वन इज द F3. सो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? देखो जरा, आप डायरेक्टली बता सकते हो, वैसे ट्राइंगल बन रहा है, नेट फोर्स 0, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जो है सो इधर की ओर है, तो ये F1 है बच्चे, दिस वन इज द F2 एंड हेयर F3. अब देखो ये ट्राइंगल बना रहा है, इसका मतलब इस दोनों का भी रिजल्टेंट क्या होगा? सेम ऐसा ही होगा. जो इस फोर्स को, ये इस दोनों का जो रिजल्टेंट ये है, ये इसको कैंसिल कर देगा. इसका मतलब क्या? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ऑन दैट मूविंग ऑब्जेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा? सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पहला क्या? चेंज अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स, नहीं, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट. 4th इज आंसर, है ना. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे. आपको ये ड्रॉ भी नहीं करना था, मैं आपको फील फैक्टर ऐड करने के लिए ये ड्रॉ करवाया, ठीक है, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है. Come to the next question. A truck is stationary and has a bob suspended by the light string in a frame attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with acceleration a. The pendulum will tilt. अब ये क्या है? कॉमन टिपिकल क्वेश्चन. आप कभी भी आपको पढ़ाया गया होगा तो हमेशा ही हर एक कोई भी टीचर से पढ़े होगे आप, तो ये क्वेश्चन डिस्कस जरूर किया जाता है. Now this truck is moving in forward direction, horizontally rightward direction with acceleration a. ठीक है ना. हमने जूम किया, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो इसी ट्रक में, इट मीन्स आवर ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. सोचो, मैं पहले इससे पहले एक कंडीशन बनाता हूं, जब ये ट्रक मूव नहीं कर रहा था एक्सेलरेशन से, तो जो पेंडुलम था वो इस तरह से नीचे की ओर था. अब ये सडन ये ट्रक जो स्टार्ट हो गया, मान लो ये ट्रक मूव करना शुरू कर दिया विद एक्सेलरेशन ए. इस समय भी हमारा ऑब्जर्वर यही था, है ना. अब ये ट्रक मूव करने लग गया, तो ये क्या हो जाएगा? स्लाइटली इस तरह से टिल्ट होगा. ऐसा टिल्ट क्यों होगा? क्योंकि इस पे जो है पीछे की ओर सूडो फोर्स लगेगा. अब ये सूडो फोर्स कितना है बच्चे? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आई एम अज्यूमिंग द मास ऑफ दिस बॉब इज m. इसका मास कितना हमने अज्यूम किया? m. अब इसके चलते ये मैंने अज्यूम किया ये थीटा एंगल से मूव कर लिया. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. चलो, ये मास m है, नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन विच इज mg, ठीक है ना. और इधर की ओर हमारा एक फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, और इधर की ओर हमारा फोर्स जो लग रहा है, एक मिनट, इधर की ओर सूडो फोर्स लग रहा है विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, ये एंगल बच्चे हमने अज्यूम किया है थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल हमने थीटा अज्यूम किया था, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. थीटा, इसका 2 कंपोनेंट आएगा, ये क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट टी का क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा, ठीक है. अब यहां से इक्वेट करो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को. व्हाट वी कैन राइट? द टी साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू m इनटू g. ओके, डिवाइड इट, क्योंकि टी हमने यहाँ पे अननोन फॉर्म किया था, हमें क्या चाहिए? थीटा वगैरह के फॉर्म में कमेंट करना होगा यहाँ. तो आप जो इसको डिवाइड करोगे फर्स्ट और सेकंड को, इफ आई एम अज्यूमिंग दिस इज द फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, इफ यू विल डिवाइड फर्स्ट and second, what you will get? tan theta equal to m cancel out a upon g.
So from here what we can write, the theta equal to tan inverse A upon G. अब देखो बच्चे कौन सा आंसर है, पहले क्या था लेफ्ट, ठीक है, एन एंगल इंक्लिनेशन, ये तो गलत है भाई, द लेफ्ट एंगल इंक्लिनेशन पेंडुलम वर्टिकल tan इनवर्स A अपॉन G, ये सही है। सेकंड देखो लेफ्ट, हम लोग क्या करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं राइट वर्ड डायरेक्शन, तो इसको अपने को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, तो लेफ्ट कितने से, थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो सही आंसर कौन सा है, सेकंड, इजी था, ठीक है, और ये कॉमन टिपिकल क्वेश्चन भी है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the end of massless string. The string passes over the pulley which is frictionless. The acceleration of system in terms of acceleration due to gravity is, देखो अगेन ये फिर से ये कॉमन टिपिकल क्वेश्चन है, आपको जब भी पढ़ाया जाता है पुल्ली मास सिस्टम, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया गया होगा वो यही M1 M2 इस तरह से लेकर के एक्सेलरेशन पर कमेंट करा। आपके पास अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो, मैंने आपको क्या बोला, मैं हर एक को एक प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आपका वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है सो रिवाइज हो जाए, ठीक है। हमने ज़ूम किया, पुल्ली टाइड है, यहाँ पे एक मास हमारे पास क्या है 6 kg, इधर की ओर मास कितना है बच्चे 4 kg, आपको क्या करना है एक्सेलरेशन निकालना है। अब हमने एज्यूम किया कि इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, आपको कैसे पता चला, ये क्वेश्चन हो सकता है बच्चों का कि सर आपको कैसे पता चला कि ऐसे मूव करेगा ऐसे, अभी तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, तो अपन जज कर सकते हैं कि इधर ज्यादा मास है इधर कम मास है। अगर आपने अपोजिट भी एज्यूम किया तो आंसर्स क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा और गलत नहीं होगा, आपको प्रॉपर एज्यूम करना है, सब कुछ हो जाएगा। नीचे की ओर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वेट इसका कितना हो जाएगा 6G, ऊपर की ओर एज्यूम किया है हमने टेंशन T, तो यहाँ एक ही स्ट्रिंग है, ये क्या है मासलेस फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा T, नीचे की ओर इसमें फोर्स कितना हो जाएगा 4 × G। 1 by 1 मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, मैं अगेन आपको बताया कि मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए। इट्स अ 6G in upward direction, it's a T, and here acceleration I am assuming A. So write down the equation for the 6 kg mass. What we can write, 6G minus T equal to 6 into A. This one is the first equation. अपने को क्या चाहिए एक्सेलरेशन, तो अपन टेंशन के फॉर्म में फिर से इसको लिख लेते हैं। सो हेयर टेंशन इक्वल टू 6G माइनस 6A, ठीक है। नाउ राइट डाउन द इक्वेशन, आई एम अगेन ड्राइंग अ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द 4 kg मास इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट्स अ 4G, अपवर्ड डायरेक्शन T and it's moving in upward direction with the acceleration A. So आप यहाँ पे इक्वेशंस क्या लिख सकते हो बच्चे, T minus 4G equal to 4 into A. So from here we can write T equal to 4A plus 4G, ठीक है। This one is your second equation. Second equation, it's a, okay wait, this one is the second equation, this one is the first equation. Now from first and second दोनों में टेंशन है, टेंशन सेम रहने वाला है दोनों साइड, तो अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। व्हाट वी कैन राइट, हियर आई एम राइटिंग, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, एक मिनट, व्हाट वाज द इक्वेशन, चलो यही कर लेते हैं ना, इजी है। 6G माइनस 6A इक्वल टू 4A प्लस, ये एक लॉक स्क्रीन का प्रॉब्लम, प्लस 4G, ठीक है। अब A को एक साइड लेते हैं इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 2G इक्वल टू 10A, A इक्वल टू व्हाट G अपॉन 5, आंसर कौन सा आ जाएगा सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए प्रीवियस ईयर, ओके। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रिक्शन, ओके स्टूडेंट, बाय।